गुडविल इज पेड प्राइवेटली, तो उसका कोई एंट्री नहीं है। नो एंट्री, केस फाइल हो तो नो एंट्री एट ऑल। बैलेंस नहीं है तो राइट ऑफ कर देगा, लेकिन नया गुडविल का कोई एंट्री नहीं है। नो एंट्री, इग्नोर, केस फाइल, गुडविल इज पेड प्राइवेटली, इग्नोर। Now, all of you, I want you to take some number. Sum number 2. Sum number 2 में ना दो क्वेश्चंस है। पेज 96, सम नंबर 2, उसमें दो सब क्वेश्चंस है। हाँ ओके, अभी सुनो। On April 1, 2018, page 96, we have started with RBM. Tell me, what is RBM? Reducing balance method. Under this method, depreciation is charged on what? Original cost or written down value? It's charged on written down value every year. Are you listening? Hello? Depreciation is charged on cost or written down value, so written down value. Okay? एक सब हमने किया भी था ना RBM। On April 1, 2018, Shubhra Limited purchased a machine for 12 lakhs. On October 1,
A part of the machine purchased on 1st April 18 was sold for 80 was sold for 45, and a new machine at a cost of 158 was purchased and installed on the same day. Company adopted 10% depreciation return on value. So which method is this? RV. Show necessary ledger account for the year ended 19 to 21, assuming a provision for depreciation account is not maintained and provision for depreciation account is maintained. तो हम लोग पहला वाला मेथड से कर रहे हैं, तो उसको नंबर दे देना 2A where provision for debris is not maintained. ठीक है, provision for depreciation is not maintained. हाँ, provision for depreciation अभी बाकी है, वो अलग डेप्रिसिएशन पीएफडी में रिकॉर्ड होता है. वो पीएफडी वाला पार्ट है ना, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब वो सिस्टम हम लोग फॉलो करेंगे. ओके, पीएफडी वाला प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. अभी ये सादा वाला है अपना नॉर्मल मशीनरी अकाउंट. ओके, राइट डाउन नॉर्मल मशीनरी अकाउंट. मशीनरी अकाउंट और डेप्री अकाउंट दो बार करेंगे अभी और बाद में पीएफडी के साथ. चलो शुरू करते हैं. 3 साल में बनाने गए. First date 1/4/18. What entry will pass? To bank account how much? 12 लाख. 12 लाख. बराबर है, 12 लाख. Then October 1, 2020. Is it in the same year or next year? Next to next year. Okay. तो 18-19 में और कुछ हुआ है? go to last date 31st March 19. क्या करना है? बाय डेप्री कितना होगा? 12 लाख पे 10% for how many months? So I think 12 लाख 120 sorry. So 31st March 19 को बैलेंस बन जाएगा कितना? नहीं, 10,80,000. This will become to balance BD 10,80,000. Is that right? On 1/4/19. On 1/4/19. बोलो what? सर ये साल जो कुछ सेकेंड ईयर में कुछ हुआ है 2021 में? सेल तो हो रहा है लेकिन इट इज ऑन 1st October 2020. एक और बार 2021 So again, you simply charge depreciation. You simply charge depreciation. Is that right? Got it? 1 lakh. So on 31st March 2020, buy debris. This would be on what? 10 lakh? Pay 10% for 12 months. 1,08,000 आ रहा है. हाँ, और बैलेंस आ रहा है 9 लाख. कितना आ रहा है? 972. This will become to balance BD 972. At the same time, your debris account will just show 2 entries. एक एंट्री आएगा आपका टू मशीन 1,20,000 और बाय पीएनएल. ये नॉमिनल अकाउंट है तो ईयर एंड पे पीएनएल में चला जाएगा. दिस इज टैलीड. सिमिलरली नेक्स्ट ईयर टू मशीन 1,08,000 and buy PNL 1,08,000. This is 31st March 19 and this is 31st March 20. So it was a normal debris for the first 2 years. Now in the third year,
what is happening is you are selling a machine for 45 whose original cost on 1st April 18 was 80,000. So whenever you sell, you record what? Profit or loss on sale. तो 1 for 18 को ये 80,000 का था. Can you see that? Less depreciation for 18, 19, 12 महीना I think 8,000 आएगा. 10% है ना? We arrive at WDV as on 1/4/19, that is 72,000. Is that right? Less depreciation 1920 for 12 months, it is 7,200 as per RBI. Arrive at WDV as on 1/4/20, which is I think 64,800. Did you sell it in 2021? No. 2021 में बेचा ना? 2020 में हाँ मतलब वही साल 2021 है. 18, 19, 19, 20. अच्छा 2240 2021 में कब बेचा? अक्टूबर में. So depreciation 2021 for how many months? 6 months 6 months. कितना आएगा? 3140 3240. 61 So WDV as on 1/10/20 is 61,560, right? Less sale for I think 45. You sold it for 45. You're getting a loss on sale of 16,560. How many items you record at the time of sale? 3. Pehla to depre for the part of the year used, which is 3240. Then buy bank, that's your sale value. And your loss, so buy loss on sale of machine. Buy loss की 2 loss. Buy loss. Profit होता तो 2 loss, 2 profit. And date of all the 3 transactions would be 1/10/20. That's your sale. अभी और एक डेपरी का आएगा ना. एक और परचेज है. Okay. So now there is one more purchase. तो परचेज का डेट क्या होगा आपका? टू बैंक सेम डेट. कितने का खरीदा है आपने? 1/10/20 को 1,58,000 का. Can you see that? हाँ भाई. And then on 31st March 21 by depreciation. अब आपको अदर मशीन पे कैलकुलेट करना है डेप्री. 11,20,000. तो हाउ टू डू इट? Remember, we had a technique. Whenever we are in the continuing year in RBI, we divide the asset between old and new. याद आया? Old machine and new machine. New मतलब क्या? जो ये साल आया. Old मतलब क्या? ऊपर से जो है ना उसका बैलेंस पे कर दो, बराबर. बट जिस साल में सेल हुआ है ना, सेल, उस साल पे क्या करने का? ये ओपनिंग बैलेंस माइनस सोल्ड मशीन का WDV ऑन द सेम डेट. सोल्ड मशीन का WDV ऑन द सेम डेट 64,800. सोल्ड मशीन का WDV ऑन द. कर क्या रहे हो आप? ये बैलेंस है ना, इसमें क्या है? डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ ऑल द मशीन्स. तो आप क्या कर रहे हो? डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ ऑल द मशीन्स में से जो सोल्ड मशीन है ना, उसका डेप्रिशिएटेड वैल्यू हटा रहे हो, तो बाकी का मिल जाएगा. समझ में आया? 2 मशीन या 3 मशीन, कितने भी मशीन हो, ये WDV है सबका. इसमें से जो सोल्ड मशीन है उसका सेम डेट मतलब 1/4. सर तो 1/10 तक तो उसका डेपरी हुआ, वो किधर रिकॉर्ड? वो हो गया ना ये रहा. अच्छा डेबिट माइनस क्रेडिट है. डेबिट माइनस क्रेडिट, टेक एवरीथिंग एक्सेप्ट न्यू मशीन. ओके. सुना? बट बेटर टेक्निक क्या है?
ये ओपनिंग बैलेंस माइनस सोल्ड मशीन का WDV ऑन द सेम डे। सो इसका वैल्यू क्या होगा? दिस इज ओपनिंग बैलेंस माइनस सोल्ड मशीन का WDV एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। At the beginning of the year, sold machine का WDV at the beginning of the year, which is 9,72,000 minus 64,800. 9,07,200 का 10% for full year, 12/12. तो 10% ही ले लो, इसका 10% for full year. 9,0720, ये तो ओल्ड का हुआ, ये तो नया आया उसका 6 महीने का अलग। तो न्यू, व्हाट यू मीन बाय न्यू मशीन? तो अभी खरीदा इस साल जो खरीदा 1,58,000 का 10% फॉर 12 महीना, 12 महीना क्यों? 6 महीने, 7,009, तो 98,620, 98,620 आया, 98,620 और बाय बैलेंस CD कितना आ रहा है? 11 लाख बैलेंस बराबर मेरा 11 लाख ओके। सो बैलेंस इज 966,500 ओके। 3240 इधर 2 मशीन आएगा, एक और 2 मशीन आएगा। दिस इज आई थिंक 98,620 एंड बाय बैलेंस CD कितना है? 1,1,860. 1,00,000। ये 2 रेट्स होंगे आपके 101,860 101,860 ओके। बहु Alright, so that's how you solve without maintaining PFD, without maintaining PFD. नहीं सीखा है PFD बात। अभी सिखा रहे हो। तो हाउ टू सॉल्व सेल का वक्त का डेप्री समझा? सेल के वक्त ओल्ड मशीन कैसे करने का? ओपनिंग बैलेंस माइनस सोल्ड मशीन का WDV ऑन द सेम डे। अभी न्यू वाले पे बोलिए बैलेंस 31 March 21 बराबर बाय PNR आएगा, बाय PNR तो नहीं हुआ है guys what now try sum number 25 on your own। 25 में एक मशीन क्रेडिट पे गया, व्हाट इज द एंट्री?
पुट एडिटर का नाम एंड सम नंबर 25 पेज 101। अभी सुनो, आपका मशीन है ना डिस्ट्रॉय हुआ, क्लेम रिकवर्ड नहीं है, क्लेम एडमिटेड है। क्लेम एडमिटेड है तो क्या लिखने का? बाय क्लेम, बाय क्लेम इंस्टेड ऑफ बाय बैंक यू राइट बाय क्लेम। चलो फोन पर आया था सब। Come on guys, wait 10 minutes, not more than 10 minutes. Sum number 25. हाँ 4 years का नहीं 3 years 6 7 4 years 6 7 8 9 5 6 6 7 7 8 8 9 4 साल का मशीनरी एंड डेब्री बोर्ड फॉर 4 years 10 मिनट। देखो सम इजी है, सम आता भी है। टाइमिंग टाइमिंग बेटा टाइमिंग मशीन एंड डेब्री बोर्ड फर्स्ट वाला ऑक्सफोर्ड मशीन से पहला वाला तो पहला वाला कैश पे है। हाँ क्या क्या बोल रहे? खुद से ट्राई करो 10 मिनट 8-5 तक होना चाहिए। 8-5 तक होना ही चाहिए। 25th सम क्लेम एडमिटेड है यार, रिकवर्ड नहीं है। बाय क्लेम टू क्रेडिटर टू ऑक्सफोर्ड मशीन नाम आएगा तो ऑक्सफोर्ड मशीन। नहीं खाली 20 होगा